Good morning, students. So let's start with bacteriophage vector system. In our last lecture, we discussed about lysogenic and lytic cycle and bacterial lawn, plaque, and what are bacteriophages. So now we'll discuss about the vector system, how these bacteriophages can be utilized as a vector system. So let's start with lambda genome. So in our last lecture we discussed about two type of phases. One is lambda, another is M13. So let's first start with lambda phage vector system. So the lambda genome, it is around 48502 base pair in length, contain an origin of replication. Again, origin of replication point is required in every vector system, क्योंकि अगर replication point होएगा then ही replication होएगी, cloning होएगी, copies बननगियां. So this is must in every vector system. Then there are genes for head and tail protein and for enzyme for DNA replication. DNA replication copies ਲਈ ਚਾਹੀਦੀਆਂ. Head and tail protein, अगर तुसी virus is the structure पढ़िया, then there is a head structure, tail structure and there is a DNA. So ये सारियां जड़ियां head and tail proteins आ ये भी required होंगियां ताही ओह एक host cell दे अंदर जाके अपने आप दियां जड़ियां copies है बना पाएगा, क्योंकि copies बना ली there is a requirement of machinery, और machinery अगर उस vector system दे विच है then ही वो copies बन सकदियां, otherwise possibility नहीं है. So genes for head and tail protein are required. Then DNA replication enzyme obviously required. Lysis and lysogeny. This is lytic or lysogenic cycle gene that are related to lysis and lysogenic, and single strand protruding cohesive ends of 12 bases are there. ਹੁਣ इस 12 बेसिस ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ देयर इज अ ਪ੍ਰੋਟਰੂਡਿੰਗ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆ कि लाइक ये मेरे को डबल स्टैंड है, तो इस डबल स्टैंड दे एक 3' और एक 5' एंड ज्यादा लंबा आ. दीज आर नोन एज प्रोट्रूडिंग एंड्स. ये प्रोट्रूडिंग एंड्स किन्ने बेसिस दे आ? 12 बेसिस दे. सो इन्होंने लिखा होया कि दिस ए सिंगल स्टैंडर्ड प्रोट्रूडिंग, सिंगल स्टैंड हो गया ना. सो एक पूरा स्टैंड है जिदा प्रोट्रूडिंग एंड है, एक पूरा स्टैंड है जिदा एक प्रोट्रूडिंग एंड है. सो सिंगल स्टैंडर्ड प्रोट्रूडिंग कोहेसिव एंड्स बोलते हैं इन्हों 12 बेसिस दे, जिदा सीक्वेंस ए होएगा एंड दी अदर एंड इज कंप्लीमेंटरी टू इट. हुण इहदा की मतलब है, इत्थे मैं तुहानू एग्जैक्ट नहीं दस रही, बट की मतलब है इहदा पूरा सीक्वेंस वो नहीं बनाऊंगी 12 बेसिस दा. तो अगर इस साइड ते CGTACG है तो ਇਹਦਾ ऑपोजिट इधर होना चाहिए है. इधर की होना चाहिए कि लाइक जदों ये बाउंड करन सर्कुलर फॉर्म च जान, देन अगर इत्थे CGTACG सी तो ये अगेंस्ट इधर की होगा GCATGC. सो ये किवें आ, मतलब कि एक एंड 5' एंड ते एक सीक्वेंस लग्या होया, ओदा कंप्लीमेंटरी दूसरे स्ट्रैंड दे इत्थे लग्या होया. सो CG दा कंप्लीमेंट अगर आप लिखिए GCATGC क्यों चाहिए है? ताकि यह वेक्टर सिस्टम सर्कुलर बन सके. सो दिस इज द रिक्वायरमेंट. सो इनू सर्कुलर बनाने लई आपां की करदे हां, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ 12 बेसिस सिंगल स्ट्रैंड प्रोट्रूडिंग एंड इट्स अदर एंड मस्ट बी कंप्लीमेंटरी टू इट. तो अगर तुसीं इनू दोनों नू देखोगे तो ये कंप्लीमेंटरी होंगे. सो द लैम्डा जीनोम रिमेन लीनियर इन द फाज हेड. हुण इहदी इंपॉर्टेंस दस्सण लगे आ ये क्यों ये कोहेसिव एंड चाहिए आ. सो द लैम्डा जीनोम रिमेन्स लीनियर इन द फाज हेड. फाज हेड, दिस इज फाज वायरस फाज हेड. तो इत्थे इट कैन बी लीनियर, बट विदिन E. coli cell, E. coli is a host cell. इस वायरस ने किनो अटैक करना? बैक्टीरिया, that are known as bacteriophages. So when this virus attack this bacteria after entry into E. coli cell or bacterial cell, it will circularize with the help of cohesive ends. So importance of cohesive ends is what within E. coli cells the two cohesive ends anneal to form a circular molecule necessary for replication. Why it is required? For the
replication purpose। तो उत्थे linear नहीं रह जाना इन्हें, इत्थे की बन जाना आ circular with the help of cohesive ends। So the sealed cohesive ends are called cos site। So these are known as cos sites, which are the site of cleavage during and are necessary for packaging of mature phase DNA into phase head। यही cos site ने कहते जड़ियां cleavage मतलब टुटना, क्योंकि जे इन्होंने टुटना है तो इसी जगह तो टुटनगियां ताही वो protruding ends बना देंगियां। and are necessary for packaging मतलब एंटर होना, पैक होना किदे विच मैच्योर फाज डीएनए इनटू फाज हेड। मैच्योर फाज डीएनए इनटू फाज हेड मतलब जदों मेरे बैक्टीरिया सैल दे विच कॉपीज बननियां आ, हेड एंड टेल प्रोटीन बनी जानी है, तो इहदे विच डीएनए दी एंट्री जानी है। डीएनए दी एंट्री और पैकेजिंग जिहड़ी होनी आ इत्थे जाके फिर इन्हें लीनियर हो जाना। तो कॉस साइट टुटनियां बननियां तो उदों ही बननगियां जे अपने कोले कॉस साइट सही तरह सलामत रहणगियां। अगर कॉस साइट दे विच प्रॉब्लम आ गई देन देयर विल बी प्रॉब्लम इन दी पैकेजिंग ऑफ मैच्योर फाज डीएनए इनटू दी फाज हेड। दिस इज फाज हेड। दिस अगर तुसी स्ट्रक्चर पढ़िया हुण मैनूं पता नहीं है तो दिस इज हेड, this is tail and there is a DNA or RNA genetic material। so ये ਆਪਾਂ एक वायरस का नॉर्मल स्ट्रक्चर दसदे हां। सो अगर मैं कह रही हां कि पैकेजिंग होने का मतलब की है कि माई DNA और RNA विल एंटर इनटू द फाज हेड। तो फाज हेड दे विच मैच्योर बन के उन्हें जो एंटर होना उहदे लई वी रिक्वायर्ड दीज कॉस साइट। नाउ the use of wild type lambda genome as a vector present two serious problem। now we'll discuss about कि हुण आपां की कर रहे हैं this lambda phase नूं जिहदे मैं characteristics पढ़ ले कि इहदा 48502 बेस पेयर डीएनए है, इहदे कोल हेड एंड टेल प्रोटीन्स हुंदियां, इहदे कोल एंजाइम्स हुंदे आ डीएनए रेप्लिकेशन लई, इहदे कोल कॉस साइट्स प्रेजेंट ने, या फिर आपां कहिए कि इहदे कोल लाइटिक और लाइसोजेनिक जीन प्रेजेंट ने। कहते जदों ये पूरे डीएनए नूं या आपां कह लईए जीनोम नूं आपां स्टडी करदे आ तां इहदा जिहड़ा जीनोम आ इट क्रिएट टू प्रॉब्लम्स, सीरीयस प्रॉब्लम्स दैट आर रिलेटेड टू वैक्टर सिस्टम। मैं वैक्टर सिस्टम बनाना चाहती हाँ इस फाज नूं, बट वैक्टर सिस्टम बनाने तो पहला मैनूं किस चीज़ का ध्यान देना पैना कि जिहड़ियां ये प्रॉब्लम है उन्हां नूं मैं डिसॉल्व करा खत्म करा। तो उहदे लई सब तो पहला तो मैनूं ये पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम्स की ने। तो सब तो पहली प्रॉब्लम है रिलेटेड विद साइज। किवें साइज देखो, द फर्स्ट प्रॉब्लम कंसर्न द साइज ऑफ डीएनए इंसर्ट। आपां इत्थे गल कीती सी इट कैन टेक अप टू 24 KB 30 KB 25 KB तक अपना डीएनए ऑफ इंटरेस्ट लै सकदा है। तो इस केस दे विच की होएगा, द लैम्डा जीनोम कैन अकोमोडेट ओनली 3 KB डीएनए इंसर्ट। तो कहते अगर आप वाइल्ड टाइप की गल करिए, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय वाइल्ड टाइप मतलब जिहड़ी नैचुरल टाइप है, एंड दूसरी टाइप की होंदी है म्यूटेंट टाइप जिहड़ी आपां क्रिएट करदे हां विद द हेल्प ऑफ चेंजेस, विद द हेल्प ऑफ म्यूटेशंस, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट वेरिएशन। तो वाइल्ड टाइप जो नेचर च प्रेजेंट है, म्यूटेंट टाइप जो आपां क्रिएट करांगे। प्रॉब्लम की आ कि अगर मैं वाइल्ड टाइप देखा मतलब लैम्डा जीनोम नूं स्टडी करा, तो लैम्डा जीनोम दे केस दे विच वाइल्ड टाइप दे विच अगर मेरा डीएनए इंसर्ट दी गल करा तो it can only carry 3 KB of DNA of interest। 3 KB of DNA of interest, 10 KB तो आप प्लाज्मिड वेक्टर नाल कर लेंदे सी। सो 3 KB तो बहुत छोटा आ, मैनू लैम्डा फेज का फायदा ही नहीं होना क्योंकि 10 KB मैं अपना प्लाज्मिड वेक्टर यूज कर लूंगी, क्यों मैं लैम्डा फेज दे स्टडी दे विच जाना। तो ये प्रॉब्लम है एक बहुत बड़ी इस वेक्टर सिस्टम दे विच। कहंदे this problem is resolved by deleting the central region of lambda genome। it means कि जेड़े मेरे ये पार्ट्स ने लैम्डा जीनोम दे एंजाइम वाले ने, कॉस ने, डीएनए रेप्लिकेशन पॉइंट है, हेड एंड टेल प्रोटीन है, लाइटिक और लाइसोजेनिक है। तो इन्हां विच कहंदे कोई सेंट्रल रीजन दे विच कोई रीजन यह जिहा है जेड़ा कि मैं
खत्म कर सकती हाँ, रिमूव कर सकती हाँ। क्यों? ताकि मेरे को स्पेस क्रिएट हो जाए और मेरा जो डीएनए ऑफ इंटरेस्ट आ 25 KB तक या 20 KB तक एंटर हो जाए। 3 KB का मैनू कोई फायदा नहीं। सो इस प्रॉब्लम नू सॉल्व करने लिए कहते सेंट्रल रीजन दे विचों मैं की करदी हाँ, एक पार्ट नू डिलीट कर दिंदी हाँ। पर हुण क्वेश्चन की है किहड़े पार्ट नू डिलीट करा? कि मैं डीएनए ऑफ रेप्लीकेशन के ओरिजिन पॉइंट नू डिलीट कर सकती हूँ? नहीं, नैवर। क्योंकि वैक्टर सिस्टम दे विच ओरिजिन सब तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेप्लीकेशन ओरिजिन, ताही तो रेप्लीकेशन होएगी। क्या मैं रेप्लीकेशन एंजाइम्स नू कर सकती हूँ? नहीं कर सकती, अदरवाइज रेप्लीकेशन ही नहीं होनी मेरे डीएनए ऑफ इंटरेस्ट की। क्या मैं कॉज साइट नू कर सकती हूँ? नहीं कर सकती, मेरे वैक्टर सिस्टम दे विच सर्कुलराइजेशन ही नहीं होनी, सर्कुलर ही नहीं होना। अगर सर्कुलर नहीं होया अगे ओदी रेप्लीकेशन च प्रॉब्लम आ जानी। सो ये भी पॉसिबल नहीं है। देन क्वेश्चन इज कि मैं लाइटिक और लाइसोजेनिक जीन दे विच किसी नू डिलीट आउट कर सकती हूँ? किनू कर सकती हूँ? अगर कर सकती हूँ, यस मैं कर सकती हूँ सब तो पहला तो, बट किनू करा? किहड़े मेरे लिए फायदा है? तो लास्ट लैक्चर च मैं तुहानू दस्सिया सी कि लाइटिक साइकिल दे विच अपने कोल बहुत सारिया कॉपीज बनदियां। क्यों? क्योंकि एक होस्ट सैल दे अंदर, बैक्टीरियल सैल दे अंदर लाइटिक दे केस दे विच वायरसिस बहुत जल्दी नाल डिवाइड करते हैं, बहुत सारिया कॉपीज बनाते हैं। सैल दे विच बहुत ज्यादा कह लो कंसनट्रेशन हो जाती है, भार वध जाता तो सैल का ब्लास्ट हो जाता, टुट जाता एंड ये वायरस नेचर च रिलीज हो जाती है। नैचुरल सिस्टम की गल कर रही हूँ। तो इट मीनस लाइटिक साइकिल मेरे लिए फायदेमंद रहूगा। क्यों? क्योंकि लाइटिक साइकिल दे विच मेरे को कॉपीज बन रही है और मैं की चाहती हाँ डीएनए सिस्टम के थ्रू या वैक्टर सिस्टम के थ्रू कि मेरे को कॉपीज बन सकन। दूसरा की है लाइसोजेनिक। लाइसोजेनिक दे केस च की हुंदा कि मेरे डीएनए जिहड़ा बैक्टीरिया दा डीएनए है, ईकोलाई दा डीएनए है, ओहदे विच ही जाके मेरा डीएनए ऑफ इंटरेस्ट या वैक्टर सिस्टम इंट्रोड्यूस हो जाता। हुण जदों ईकोलाई डिवाइड होएगा 24 घंटे बाद उदों ही मेरा वैक्टर सिस्टम डिवाइड होएगा, तो ये तो बहुत दिन ले जाएगा। तो ये मेरे लिए फायदेमंद नहीं है। इट मीनस लाइसोजनी जीन ही यह जे जीन ने जिहड़े नॉन एसेंशियल ने इस पूरे जीनोम दे अंदर। तो इट मीनस कि जदों मैं इत्थे प्रॉब्लम नू सॉल्व करन दी गल कर रही हाँ, दैट इज रिजॉल्व बाय डिलीटिंग द सेंट्रल रीजन। हुण अगे आपां पढ़दे हां मोस्ट ऑफ द जीन्स फॉर लाइसोजेनी। नाउ लाइसोजेनिक जीन्स आर नॉन एसेंशियल जीन्स are located in the segment between 20 to 35 kb and this region is called the non-essential region since it can be removed without affecting the ability of phage to infect E. coli cell. So it means 20 to 35 kb 20 to 35 kb मतलब 15 kb मैं फ्री कर लिया लाइसोजेनिक रीजन नू, लाइसोजेनिक जीन्स नू खत्म करके, एंड 3 kb मैं वैसे ले सकती हूँ। तो 18 kb तो बहुत ईजिली मेरे वैक्टर सिस्टम दे विच एंटर हो सकता, बट 25 kb तक किवें पहुंचेगा कि अगर मैं होर ज्यादा म्यूटेशन कर देवां, चेंजिस कर देवां, तो 25 kb तक भी मैं लैम्डा फाज नू ले जाऊंगी, जिहदे नाल मेरा वैक्टर सिस्टम खराब ना होवे, मेरी रेप्लीकेशन खराब ना होवे। सो फर्स्ट प्रॉब्लम नू आपां किवें सॉल्व कीता? आपां प्रॉब्लम नू सॉल्व कीता विद द डिलीशन ऑफ नॉन एसेंशियल segment. So the whole or a part of this segment is deleted to create lambda vector. तो first problem solve होगी size D with the deletion of non-essential segment. तो it accommodate, now it can accommodate large DNA insert, and next is it ensure the recombinant phase to be always lytic. This is important because we have deleted all the non-essential part which is a lysogenic part. Now our whole vector system is known as or can be utilized as a lytic phase or lytic cycle. तो lytic cycle ही तो चाहिए सानू, क्योंकि सानू पता है, साडी स्टडी है, सानू इंफॉर्मेशन है, सानू नॉलेज है कि लाइटिक साइकिल दे विच ही कॉपी नंबर वधदा आ। बहुत सारे अपने कोल वायरसिस की डिवीजन होंदी है। अगर वायरस की डिवीजन हो रही है इट मीनस वो वायरस के विच ही, उस वैक्टर के विच ही तो आप डीएनए ऑफ इंटरेस्ट पाना अपना, इट मीनस साडे डीएनए ऑफ इंटरेस्ट दियां भी कॉपीज वधनगियां। सो लैम्डा फाज इज ऑलवेज लाइटिक नॉट लाइसोजेनिक। नेक्स्ट है द सेकंड डिफिकल्टी। Second difficulty arise from the fact that the lambda genome is so large that it contain more than one recognition site for virtually every restriction enzyme.
हुण इस लाइन नूं आपां नॉर्मल लैंग्वेज च समझीए तो इहदा की मतलब आ, कहंदे सैकेंड डिफिकल्टी की आंदी आ कि लैम्डा जीनोम दे विच, हुण मैनूं सर्कुलर बना के दस रही हां, लैम्डा जीनोम दे विच कहंदे रिस्ट्रिक्शन साइट्स प्रेजेंट ने, वो आपां नूं चाहीदियां भी हुंदियां क्योंकि रिस्ट्रिक्शन साइट की हैल्प दे नाल ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की यूटिलाइजेशन होएगी एंड आपां कट प्रोड्यूस करके अपना डीएनए ऑफ इंटरस्ट पा पावांगे। बट कहंदे जिहड़ियां रिस्ट्रिक्शन साइट्स ने दीज आर नॉट यूनीक। यूनीक का मतलब की हुंदा कि जिहड़ी एक ही प्रेजेंट है, एक तो वध नहीं है किते, जिवें आपां PBR 322 च पढ़िया सी कि उहदे कोल यूनीक रिस्ट्रिक्शन साइट है, उन्हां दी हेल्प दे नाल आपां कट प्रोड्यूस करके अपना डीएनए ऑफ इंटरस्ट एम्पिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन च पा लैंदे सी। इस केस च की आ कि एक तां सेम मेरी नॉन एसेंशियल सेगमेंट ते EcoRI प्रेजेंट है, EcoR1 प्रेजेंट है विच इज अ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट, एंड दूसरा मेरे को एक साइट किते होर 48502 बेस पेयर सैगमेंट पूरे जीनोम दे विच किते होर प्रेजेंट है, थर्ड किते होर प्रेजेंट है। हुण अगर जदों मैं ना EcoR1 दी ट्रीटमेंट करूंगी, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पावांगी इहदे इन्हां साइट नूं कट प्रोड्यूस करन लई, डू यू थिंक कि कट सिर्फ इत्थे प्रोड्यूस होएगा? कट कैन बी प्रोड्यूस एट दिस साइट और दिस साइट। इहदे नाल की होएगा? देयर इज अ नॉन स्पेसिफिक वैक्टर फॉर्मेशन, या तुसी कह सकते हो नॉन स्पेसिफिक एडिशन ऑफ माई डीएनए ऑफ इंटरस्ट। तो होएगा कि अगर मैं इस जगह ते कट प्रोड्यूस करता और डीएनए ऑफ इंटरस्ट नूं इत्थे इंट्रोड्यूस करता, करना कित्थे चाहिदा सी? इस साइट ते। ये साइट केड़ी सी? नॉन एसेंशियल सेगमेंट वाली या लाइसोजेनिक वाली। तो इस साइट की जगह मैं इत्थे इंट्रोड्यूस करता तो मेरा वैक्टर सिस्टम फेल हो जाना। क्यों फेल हो जाना? क्योंकि ये वो साइट भी हो सकती है जिहड़ी कि रीजन ऑफ रेप्लीकेशन नूं कैरी कर रही होवे, या लाइटिक नूं कैरी कर रही होवे, या फिर आपां सिंपली कहिए कि एंजाइम्स होण इहदे विच डीएनए रेप्लीकेशन वाली। तो मेरे कोल क्योंकि स्पेसिफिसिटी नहीं है, यूनीकनेस नहीं है रिस्ट्रिक्शन साइट दी, तो मेरा वैक्टर सिस्टम दे विच हमेशा ही प्रॉब्लम आती रहेगी। तो इहदे विच देखो आ लाइन लिखी हुई, द लैम्डा जीनोम इज सो लार्ज दैट इट कंटेन्स मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट फॉर वर्चुअली एवरी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। एवरी रिस्ट्रिक्शन जिन्ने की भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ना, उहदे विच एक नहीं हैगी, एक तो वध ने। सो एज अ रिजल्ट क्लीवेज बाय रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कैन नॉट बी यूज्ड टू इंटीग्रेट द डीएनए इंसर्ट इनटू लैम्डा जीनोम। नहीं कर सकते, क्लीवेज करांगे, कट प्रोड्यूस करांगे, बट वो किते किते जाके जुड़दा रहना। सो हियर देयर इज अ यूज ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, या तुसी इस पूरे पैराग्राफ की जगह ते इत्थे यू कैन यूज द टर्म नाउ, इत्थे लिख के नाउ वी कैन मॉडिफाई दीज रिस्ट्रिक्शन साइट्स with the help of mutation, and that mutation will lead to the formation of congratulations Kabir. So it leads to the formation of it leads to the formation of mutant lambda genome. तो mutant lambda genome is that जिहदे विच अपने कोल जिहड़ा प्रेजेंट होएगा लैम्डा जीनोम, ਉਹਦੇ ਚ सिर्फ इको ही EcoR1 या डिफरेंट साइट, इत्थे सिर्फ EcoR1 ਦੀ एग्जांपल ਦਿੱਤੀ है ਇਹਨਾਂ ਨੇ, बट बहुत तरह ਦੇ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ਉਹ EcoR1 सिर्फ कित्थे ही प्रेजेंट होगा? नॉन एसेंशियल को, बाकी सारे जीनोम चो किते नहीं होएगा। तो ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ भी EcoR1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करांगे देन ਉਹ रिस्ट्रिक्शन साइट ਤੇ कट प्रोड्यूस करके अपना डीएनए ऑफ इंटरस्ट एंटर हो जाएगा। सो इस वे ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ सेकंड डिफिकल्टी ਨੂੰ भी सॉल्व कर सकते हैं। सो की है these vector have the now two basic feature. First, the vector itself can be propagated as fast in nuclei cell, enabling preparation of vector DNA. तो इट मीनस कहड़ा कहते जो वैक्टर है वो अपने आप ही अपन कोई जोर नहीं लगाना, अपन कोई ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक नहीं यूज करनी पैनी कि मैं इलैक्ट्रोपोरेशन करा या कैमिकल यूज करके अपने डीएनए जिवें प्लाज्मिड के केस दे विच जदों आपां PBR 322 नूं होस्ट सैल दे विच इंट्रोड्यूस करते हैं तो अपन कोई मैथड कोई कैमिकल यूज करना पैंदा। इत्थे आपां नूं करन दी जरूरत नहीं, क्योंकि आपां नूं पता ही है कि वैक्टर ने अपने आप ही, क्योंकि नैचुरल सिस्टम दे विच भी फाज बैक्टीरिया दे विच एंटर हुंदा ही आ, इस केस दे विच भी फाज ने ईजली अपने आप इटसेल्फ एंटर हो जाना ई कोलाई सैल दे अंदर।
तो अपना वैक्टर डीएनए उस सैल के अंदर तैयार हो जाना, आपां नूं कोई अलग तो ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं है, चाहे आपां इन विट्रो सिस्टम करते पे हैं। सेकंड की है, दे कंटेन रिस्ट्रिक्शन साइट्स विच अलाउ रिमूवल ऑफ लाइसोजेनिक फ्रैगमेंट एंड ऑल्सो प्रोवाइड इंसर्शन साइट फॉर द डीएनए फ्रैगमेंट टू बी क्लोन्ड। तो लाइसोजेनिक दी रिमूवल एंड इंसर्शन साइट मतलब यह जिहा एरिया, यह जिहा रीजन जिहड़ा मैं 15 KB डिलीट किया है, वो रीजन बन गया, मेरी साइट बन गई जिथे मैं अपना डीएनए ऑफ इंटरेस्ट पा सकूंगी। देन है ड्यूरिंग अनीलिंग एंड लाइगेशन ऑफ डीएनए इंसर्ट विद द लैम्डा वेक्टर, 2 और मोर रिकम्बिनेंट वेक्टर मे ज्वाइन एंड टू एंड प्रोड्यूसिंग अ कनकैटामर। हुण ये कनकैटामर्स की हुंदे आ एंड इंसर्शन एंड रिप्लेसमेंट वेक्टर की हुंदे आ, दैट वी विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। तो टिल नाउ वट इज लैम्डा फेज? लैम्डा फेज है कि इहदे विच की प्रेजेंट हुंदा आ, इहदियां की डिफिकल्टीज ने, प्रॉब्लम्स ने, एंड वो प्रॉब्लम्स नूं किवें रिजॉल्व करदे आ, ये आपां पढ़िया आ। नैक्सट आपां पढ़ांगे कि कनकैटामर्स की हुंदे आ एंड इंसर्शन एंड रिप्लेसमेंट वैक्टर की हुंदे आ, फिर इहदी सिलेक्शन है। बस इहदे विच इन्ना ही आपां करना। सो थैंक यू सो मच, इनू पढ़ो अच्छी तरह एंड जस्ट लेट मी नो कि समझ आया या नहीं।